আমি আপনাদের সকলকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য আমি নিজে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আমাদের মিটিং চলেছে প্রায় 6টা থেকে 12টা, মানে 6টা থেকে প্রসেস শেষ হতে এখন ঘড়িতে কটা বাজে? 12টা বাজে 10 মিনিট বাকি। জাস্ট 5 মিনিট আগে আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের টিমটা বেরিয়ে গেল। ওনাদের পক্ষ থেকে 42 জন সাইন করেছেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনোজ পন্ত আমাদের পক্ষ থেকে চিফ সেক্রেটারি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে মিনিটসে সই করেছেন, এবং ডাক্তারদের পক্ষ থেকে, জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে 42 জনের প্রত্যেকেই তারা তাদের সিগনেচার করেছেন। আমি আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে নবান্নের, আমার সাথে আমার চিফ সেক্রেটারি মনোজ পন্ত, আমার সাথে আমার হোম সেক্রেটারি নন্দিনী, আমার সাথে ডিজি পুলিশ বেঙ্গল রাজীব কুমার, আমার সাথে চন্দ্রিমা আমার এমওএস হেলথ, এবং অমনীশ যে আমাদের আন্ডার সেক্রেটারি সেই ছিল। তাছাড়াও অনেক অফিসাররা এবং অনেক বন্ধু বান্ধবরা, মানে যারা কাজ করেন সারাক্ষণ প্রশাসনের, ওদের দেখভাল করার জন্য ছিলেন। যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তার পুরোটা আপনাদের মেলে আমি সৌমুখে বলেছি নবান্ন থেকে পাঠিয়ে দিতে, ডিটেলসটা আপনারা পেয়ে যাবেন। বাট আমি ওদের প্রথমেই অভিনন্দন জানিয়েছি যে তারা আজকে এসছেন এবং বসেছেন বলে, এবং আমরা উভয় পক্ষই খুশি যে আমরা এতক্ষণ ধরে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারলাম বলে। তারাও অনেক ইস্যু রেজ করেছেন, আমরাও আমাদের যা কমেন্টস, আমরাও যতটা পেরেছি ওদের বক্তব্যটা ওরা রাখতে চেয়েছিল, আমরা সেটা রাখতে দিয়েছি, এবং আমরা আমাদের বক্তব্য, যেটা বড়দের সবসময় সৌজন্যটা একটু বেশি করতে হয়, তাই আমাদের বক্তব্য আমরা চেষ্টা করেছি ওদের গুরুত্ব দিয়ে করবার। আপনারা জানেন সিবিআই যে কেসটা তদন্ত করছেন, অভয়া পরিবারকে, অভয়ার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মিটিংটা আমি শুরু করেছি পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে। এবং ওদের যে 5টা ডিমান্ড ছিল, তার মধ্যে ফার্স্ট ডিমান্ড তো ইনভেস্টিগেশন সিবিআই, ওটা তো অলরেডি সিবিআই করছে এবং সুপ্রিম কোর্ট মনিটরিং করছে, ওটা নিয়ে তো আমাদের হাতে নেই। প্লাস ওদের 4টে ডিমান্ড ছিল। 4টে ডিমান্ডের মধ্যে যেটা ছিল, যে মেল ওরা আমাদের করেছে, একটা হচ্ছে 3টে নাম দিয়েছিল ফ্রম হেলথ ডিপার্টমেন্ট, একটা ডিএমই, একটা ডিএইচএস, আর একটা হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আমরা ওদের বোঝালাম যে একসাথে যদি পুরো ঘরটা খালি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চলবে কি করে। সুতরাং আমরা ওদের কথা মতো ডিএম এবং ডিএইচএস কে সরাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং তাদের সম্মানজনক ভাবে, এর থেকে উঁচু পোস্ট ওদের আর কিছু হয় না, তো যাই হোক, যে একজন ডিএমই হতে পেরেছে বা ডিএইচএস হতে পেরেছে, এবং তারা যথেষ্ট জাস্ট হয়েছে, নতুন বেশি দিন হয়ওনি, কিন্তু যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা বলছেন ওদের প্রতি আমাদের আস্থা নেই, তাই তাদের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়েছি। বাট এটাও ঠিক, আমি কিন্তু ডিএমই কে বা ডিএইচএস কে আমরা কাউকে অসম্মান করিনি, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে যেহেতু চিকিৎসকদের ক্ষোভ আছে, এবং তাই ওদের দাবি মেনে নিয়ে আমরা বলেছি এই দুজনকে সরানোর সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। 3 নম্বর হচ্ছে ওদের যেটা ডিমান্ড ছিল, 4 নম্বর, 3টের মধ্যে 2টো করলাম। আর 4 নম্বর ডিমান্ড যেটা ছিল সিপি বিনীত গোয়ালকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। বিনীত গোয়াল ওদের কাছে নাকি আগেই স্বীকার করেছিল, যেটা ওরা মিটিংয়ে বললেন, যে আমি পদত্যাগ করতে চাই, কারণ আমার মনে হচ্ছে তোমরা যখন আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছো না, তোমাদেরও যেমন পরিবার পরিজন আছে আমারও আছে, এটা ওরা আমাকে মিটিংয়ে বলল। এবং বলার পরে আমরা কথা বলি নিজেদের মধ্যে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীকাল 4টের পর আমরা কলকাতা পুলিশ এ বদল আনবো, এবং নতুন সিপিকে দায়িত্বভার বিনীত দেবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোর্ট কেসটা কাল কমপ্লিট না হচ্ছে, 4টের পর আমরা টাইম দিয়েছি, সেক্ষেত্রে নতুন সিপি এবং আরো কিছু পুলিশের রদবদল হবে, সেটা চিফ সেক্রেটারি কালকে নোটিফাইড করে দেবেন আফটার 4 o'clock।
এবং বিনীত যেখানে কাজ করতে চেয়েছে সেখানেই তাকে দেয়া হয়েছে। আমরা এটাও বলেছি, দেখো পুলিশ আমাদের ফোর্স এবং তারা সারাক্ষণ কাজ করেন, তাদের দিকটাও আমাদের দেখা উচিত। যাই হোক, সব কথা তো আর মিনিটসে লেখা যায় না, কিন্তু ওরা চেয়েছে বলেই বিনীত ওদের কথাটা মেনে নিয়ে আমাদের রেসপন্স করেছেন, জানিয়েছেন। তাই তিনি হয়তো সিপি থাকবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত নোটিফিকেশনটা না হচ্ছে, নতুন সিপি আসবেন। আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। অর্থাৎ 4টে পয়েন্টের মধ্যে 3টে পয়েন্ট আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি। চতুর্থত, আমরা নিজেদের থেকেই, যেহেতু ওই দিন সিপি পৌঁছবার আগে নর্থের ডিসি পৌঁছেছিলেন আগে এবং 14 তারিখে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং ওরা অভিযোগ করেছিল, যার জন্য নর্থের ডিসিকেও সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওখানে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা কালকে ডিসাইড হবে। এছাড়াও সেফটি, সিকিউরিটি, হসপিটালের ডেভেলপমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে এবং এক্ষেত্রে টাইম টু টাইম যদি কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করে চিফ সেক্রেটারির আন্ডারে একটি কমিটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে চিফ সেক্রেটারি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওরা যদি কথা বলতে চায়, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজিসিপি থাকবেন, তারা তাদের বক্তব্য জানাতেই পারেন। এইসব নানা রকম কথাবার্তা চলার পর আমরা, যেহেতু ডিটেলসটা আপনারা মেলেই পেয়ে যাবেন, আমি এটা বলি মিটিংটা পজিটিভ হয়েছে বলে আমি মনে করি। ওরাও নিশ্চয়ই মনে করে, তারাই বা সাইন করবে কেন, আর আমাদের চিফ সেক্রেটারি বা সাইন করবে কেন। আমরা বরঞ্চ ওদের দাবি একটু বেশি মেনেছি, তার কারণ ওরা ছোট বলে। এবং আমি লাস্ট যেটা বলেছি, যে তোমাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে তোমরা, আমি জানি তোমরা বলবে আমরা ফিরে গিয়ে জিবিতে আলোচনা করব, সেটা হতেই পারে। তোমাদের মধ্যে অনেকগুলো গ্রুপ আছে, অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ আছে, হসপিটাল আছে, ঠিক আছে, তোমরা ফিরে গিয়ে আলোচনা করো। কিন্তু যেটা এখানে মিনিটসে সাইন করেছি আমরা দুপক্ষ, এরপর তোমরা কাজে যোগদান করো মানুষের স্বার্থে। চারিদিকে বন্যা হচ্ছে, আমার কাছে খবর আছে হুগলিতে খানাকুলে 35 জন মানুষ ট্র্যাপড হয়ে আছে। তাদের আগে বেরোতে বলা হয়েছিল, তারা বেরোতে পারেনি, কিন্তু জল হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়েছে ডিবিসি, পাঞ্চেত এবং তেনুঘাট। মিটিং শেষ হওয়ার পরেও আমি হেমন্ত সোরেনের সাথে 3 বার কথা বলেছি, তাকে আমি বারবার রিকোয়েস্ট করেছি, কিন্তু আমি জানি না তারা কি করবে, কারণ ইতিমধ্যে যে জল ছেড়েছেন তাতে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, নর্থ 24 পরগনা, সাউথ 24 পরগনা অনেকটাই এফেক্টেড হয়েছে। হাওড়া, আমি নিজে যে বাড়ি আদিগঙ্গার সামনে থাকি, আমি দেখতে গিয়েছিলাম কি অবস্থা জলের। আমি এতটা জল আসতে কোনোদিনও দেখিনি, কারণ আমাদের গোলাটা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু, আমাদের এই জায়গাটা। আমরা সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছিলাম, প্রায় 14-15টা সিঁড়ি ছিল, একদম পুরো ভরাট হতে আর 5টা সিঁড়ি মাত্র বাকি আছে। এরপর যদি আবার জল ওরা রাত্রে ছেড়ে দেয় বারণ করা সত্ত্বেও, তাহলে কিন্তু বন্যাকে আটকানো যাবে না। ওরা বলছে তাহলে আমাদের এখানে বন্যা হবে, আমরা তোমাদের এখানে বন্যা হবে বলে তুমি আর একটা রাজ্যকে তো ভাসাতে পারো না। আমাদের না জানিয়েই সকালে প্রায় 80-90 হাজার কিউসেক ওয়াটার ছেড়ে দিয়েছে। ফলে একেতে 3-4 দিন কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি, এমনিতেই গঙ্গাগুলো, আমাদের নদীগুলো ওভারফ্লো, ড্যামগুলো ওভারফ্লো ছিল, তার মধ্যে এই জলে আস্তে আস্তে কাল সকালে বিকেলে পৌঁছবে। আমি সবাইকে বলবো সতর্কতা অবলম্বন করে দূরে দূরে রিলিফ সেন্টারে প্লিজ দয়া করে যান, এবং আপনাদের থ্রুতে বিডিও থেকে শুরু করে আইসি থেকে শুরু করে ডিএম, এসপি, অ্যাডিশনাল ডিএম, অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিও যারাই আছেন সবাইকে বলবো যে ইমিডিয়েট দেখে নাও, কারণ কালকে কিন্তু অনেক জল ঢুকবে। এই জলের উপর যদি আবার জল আসে, আমার এমনিতেই চিন্তা আছে 35 জনকে কি করে উদ্ধার করব আমরা।
আর এখন রাত হয়ে গেছে, জলের কারেন্ট এতটাই, কেউ যে উদ্ধার করতে যাবে তার উপায় নেই, কারণ যে উদ্ধার করতে যাবে সে বোটও তলিয়ে চলে যাবে, এমন অবস্থা। তো ওখানে আমরা এনডিআরএফ টিম পাঠাচ্ছি সকালে, এবং এসডিআরএফ টিমটাও আমরা পাঠাচ্ছি সাউথ চব্বিশ পরগনায়। সুতরাং আমরা প্রত্যেকে অ্যালার্ট আছি। বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দের সাথেও আমার কথা হয়েছে। সিএস নিজে মনিটরিং করছেন 24/7, এবং তিনি নিজেও ডিএমদের সাথে বারবার করে আজকে 2-3 বার ভার্চুয়াল করেছেন। উনি অলরেডি আমাদের 24/7 মনিটরিং চলছে, টাইম টু টাইম কি অবস্থা। এবং মানুষকে আবার আবেদন করছি, প্লিজ দয়া করে জল আর আগুন এই দুটো জিনিস নিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে জল ঢুকে যেতে পারে। দোতলা বাড়ি হলেও যদি একতলা ভেসে যায় তাহলে দোতলা ভাসতে কতক্ষণ নেবে? কাজে জীবনের ঝুঁকি দয়া করে কেউ নেবেন না। সতর্ক থাকুন, কিন্তু জীবন বাঁচান। একটা প্রাণের দাম অনেক বেশি। এটা আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব। যদিও আপনারা জুনিয়র ডক্টরদের স্ট্রাইক নিয়ে বেশি ব্যস্ত, কিন্তু তার মধ্যে আমার এই আবেদনটুকু যদি গ্রাম বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, বিশেষ করে জেলার মানুষের কাছে। কারণ কলকাতায় যদি এই অবস্থা হয় গঙ্গার, তাও তো হাই টাইড আজকে ছিল না। আমি দেখছি এখন জোয়ার আছে, জলের স্রোতের টান খুব বেশি আছে, এবং সেই জন্যই বুঝতে পারছি না, ইভেন আমরাও হয়তো যে কোনো সময় ডুবে যেতে পারি। জলের যে স্রোত আছে, তারপরে যদি আবার জল ছাড়ে, নিজেদের ঠিক রাখার জন্য অন্য স্টেটের উপরে ছেড়ে দিলাম, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমি আমার প্রতিবাদ জানিয়েছি। হ্যাঁ, বলেছি আমি যে আপনারা প্লিজ কর্মবিরতি তুলুন। এত কিছু আলোচনা, আপনাদের 4টের মধ্যে 3টে ডিমান্ডই মেনে নিয়েছি। তাছাড়াও সিসিটিভি, লাইট, রেস্টরুম, ওয়াশরুম, এগুলো করে দেওয়ার ব্যাপারেও 100 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং এছাড়াও সিকিউরিটি অডিটিং এর ব্যাপারেও আমরা দেখছি। সবার যাতে নিরাপত্তা থাকে, আমাদের যতদূর সম্ভব আমরা করব। আপনাদেরও বলবো লক্ষ্য রাখতে, কারণ দায়বদ্ধতা কিন্তু বোথ সাইডেরই থাকে। আর আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, অনেক মানুষ মারা গেছে, অনেক মানুষের কষ্ট হচ্ছে, চিকিৎসা পাচ্ছে না, অনেক পেশেন্ট আটকে আছে। সুতরাং মানুষ মনে করে আপনারাই তাদের ভগবান। সুতরাং আপনাদের আমি কাজে ফিরতে অনুরোধ করব। সমস্যা থাকলে সমাধান করতে হয়, আলোচনার পথ সবসময় খোলা থাকে। আজকে 3 দিন অপেক্ষা করার পর, আজকে 4 দিন 5 দিন, 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা অপেক্ষা করার পর আজকে প্রায় সব প্রসেস শেষ করতে 5.5 ঘন্টা টাইম লেগেছে। আমাদের দিক থেকে যা যা করার ছিল আমরা চেষ্টা করেছি, বাংলার মানুষ যাতে ভুল না বোঝেন, বাংলার মানুষের দিকে তাকিয়ে। এবং এটা নিয়ে আবার যেন কেউ অপপ্রচার দয়া করে করবেন না। বাংলায় দুর্গাপুজো আসছে, এটা আমার আবেদন আপনাদের কাছে। এটা আমাদের মিটিংয়ে আলোচনা হয়নি, আমি করিনি, এটা আমার পক্ষ থেকে বন্যাটা এবং ফ্লাডের ব্যাপারটা আমি বলেছি। এই পরিস্থিতি, সুতরাং ম্যালেরিয়া বাড়বে, ডেঙ্গু বাড়বে, জলজনিত রোগগুলো বাড়বে। আপনাদের খুব প্রয়োজন এখন আপনারা হাসপাতালে ফিরে যান। আমি এটুকু বলতে পারি, কারোর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। हम अपने सभी डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि जल्दी हो सके वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लें। हम उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता
इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचए ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते? हम 99% मान लिया। I am not saying anything which is when the matter is sub judice. My humble request to all the junior doctors, whatever they demanded, out of this 4th demand, what is with us? We accepted 3 demands and we requested them to join the war so that commoners should not suffer. There should not be more and more death from the commoners. And nowadays when we are facing dengue, malaria and also flood-like situation. BBC Panchayat Tenughat, the dam, they have already released too much water. And these 2-3 days we faced acute rainwater also. So both the Ganga river ponds were overflowing, and after releasing the water from Jharkhand, it's an acute problem. Some people are in a trap now. We have got the information. Police is keeping touch with them. We requested them to come early, but they thought that they will be safe. They have seen the earlier things also. तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हड़ताली डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में क्या कुछ हुआ उसके बारे में वो जानकारी साझा कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी। और मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। मनोज्ञा, कितनी मांगों पर सहमति बन पाई है डॉक्टर्स के सरकार के बीच में, और बैठक की जो मुख्य बातें थी, बड़ी बातें थी, वो क्या निकल कर सामने आई है? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने 99% बातें मान ली हैं, जिसमें से कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल का इस्तीफा, यानी कि उनको ट्रांसफर किया जाएगा। उन्हें कल 4 बजे वो दूसरे किसी अधिकारी को कमिश्नर ऑफ पुलिस का पदाधिकार सौंपेंगे और उसके बाद किसी और को नियुक्त किया जाएगा। ये सबसे बड़ी मांगों में से एक है। इसके अलावा 3 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, जिसमें डीएमई और उनके साथ साथ DHS हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उनका भी इस्तीफा मांगा गया था, जिसमें से 2 को तबादला किया जा रहा है, 2 को हटाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक एक एग्जिट में ये जरूर कह रही कि हम किसी भी अधिकारी को छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये छात्र छोटे हैं, इनकी बात मानना हम बड़े हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है। ऐसा कहते हुए उन्होंने 2 अधिकारियों को हटाया है। इसके अलावा अभी तक डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो इनके बाद भी काम पर आएंगे या नहीं। नॉर्थ डीसी को भी हटाया जा रहा है, यानी कि कोलकाता पुलिस के नॉर्थ डीसी, उनको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि ये उन्हीं का इलाका है जिसके तहत ये पूरी घटना हुई है, जो वहाँ सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारियों में से थे। कमिश्नर को हटाया गया। इसके अलावा काफी सारी मांगों के लिए करीब 100 करोड़ राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न अस्पतालों में वॉशरूम की सुविधा, रेस्टोरेंट की सुविधा, खासतौर से महिला डॉक्टरों के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने आज की बैठक की शुरुआत अभया को, यानी तिलोत्तमा को श्रद्धांजलि देते हुए की है। जो आक्रोश है लोगों में, इसकी बात हमें पता है, हमें समझ है, लेकिन इसके बावजूद हम डॉक्टर से दरख्वास्त करेंगे कि वो जल्द से जल्द वापस ड्यूटी पर आए और इसकी घोषणा भी करें। गौरतलब है कि 17 सितंबर को, यानी कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या ये डेडलॉक अब खत्म होगा। क्या डॉक्टर अगले कुछ घंटों में वापस ड्यूटी पर आएंगे या फिर स्वास्थ्य भवन के सामने इसी तरह से लगातार धूप और बारिश, दिन और रात प्रदर्शन बरकरार रखें। जी मनोज्ञा, ये तो एक पक्ष की बात हमने सुनी, सरकार ने बताया सकारात्मक बातचीत हुई है और जो बातचीत हुई है वो भी ममता बनर्जी ने साझा की है, लेकिन दूसरे पक्ष की बातचीत कब क्लियर होगी और डॉक्टर्स क्या इस बातचीत से सहमत हैं, क्या वो हड़ताल खत्म करेंगे, इसके बारे में कब तक क्लियर हो पाएगा?
देखिए, इसकी क्लैरिटी इस बात से आ जाती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक कागज से की, जिसमें 42 जूनियर डॉक्टर्स के, जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, और दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हैं, जिसमें डॉक्टर मनोज पंत जो मुख्य सचिव है, उनके हस्ताक्षर हैं। अब 30 सेक्रेटरी के एक और हस्ताक्षर, दूसरी ओर 42 डॉक्टर्स के हस्ताक्षर, जिनमें इन सब बातों पर सहमति हो गई है। हालांकि ये बात अभी तक मुख्यमंत्री ने साफ नहीं की है कि जूनियर डॉक्टर्स वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो वापस लौटेंगे, स्वास्थ्य भवन के सामने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे। जनरल बॉडी मीटिंग में फैसला होगा कि डॉक्टरों का आने वाले कुछ घंटों में क्या रुख होगा, क्या कदम होगा, क्या ये हड़ताल बंद होगी या फिर अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया गया है, जिसमें कमिश्नर को हटाना या फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का इस्तीफा, उन्हें हटाने की बात, इन सबको मान लिया गया है। इसके अलावा जो वॉशरूम्स और बाकी सारी बातों को बार बार डॉक्टर दोहरा रहे थे कि हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं है सरकारी अस्पतालों में, उन्हें मुहैया कराने, और उसका वादा भी किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी राज्य सरकार इस बात पर टिकी हुई है कि हमने जो कदम उठाए हैं वो छात्रों के दबाव में उठाए हैं, इसलिए नहीं उठाए हैं कि इन अधिकारियों से कोई गलती हुई है या फिर स्वास्थ्य विभाग से कोई त्रुटियां हुई हैं इसके पहले भी। संदीप घोष के सवाल पर फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जी मनु, क्या ये भी कहीं ना कहीं माना जाए कि सिर्फ दबाव के चलते ये बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें कमिश्नर को हटाना हो या फिर और जो भी लोग हैं जिन्हें हटाना हो, या ये सिर्फ दबाव के चलते ही हटाया गया है? ये अभी तक नहीं माना गया है कि उनकी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गलती थी, उनकी संलिप्तता थी? आप यकीन मानिए 9 तारीख को अगर ये घटना हुई थी, और 9 तारीख से अगर आप कैलकुलेट करें तो 5 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, और अभी भी डॉक्टर्स अगर सड़कों पर नहीं उतर रहे थे तो राज्य सरकार की ओर से कम ये प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। इसलिए ये बात तो कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार दबाव में इस तरह के फैसले ले रही है, जिसमें एक हफ्ते में 5 बार डॉक्टर्स को बुलाया, जिसमें बार बार डॉक्टर्स नहीं आए। फिर इस बात पर सहमति हुई कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी पूरी बैठक की तो कम से कम मिनट बनाए जाएंगे, और मिनट पर आधारित ही ये बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस पर दोनों पक्ष के हस्ताक्षर होंगे। तो ये डॉक्टर्स की जिद, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट और जूनियर डॉक्टर्स की ही ये कवायद थी, जिसके कारण राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद स्वास्थ्य भवन गई मिलना मुलाकात करने के लिए, वहां पर बातचीत हुई। फिर डॉक्टर्स जब उनके घर आए तो बारिश के बीच में लगातार डॉक्टर्स खड़े रहे, लेकिन उन्होंने वहां पर बातचीत नहीं की जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आज जब अंतिम मेल गया है राज्य सरकार की ओर से कहते हुए कि ये 5वां और आखिरी मेल है और आज ही आपको आकर बात करनी पड़ेगी, तो आप करिए, नहीं तो इसके आगे के कदम की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इसके बाद आज बैठक हुई, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ये दबाव ही था, ये आक्रोश ही था जनता का, जो सड़कों पर दिख रहा था लगातार, जिसे भले ही आप राजनीतिक रंग देने की कोशिश करें, लेकिन कोलकाता में, शहरों में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतने प्रोटेस्ट, जिसमें करीब 50 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोटेस्ट लगभग 1 महीने तक लगातार हुए हैं। ये कोलकाता के इतिहास में पहली बार हुआ है जहां पर 1 महीने तक लगातार हर रोज, कभी रात दखल के नाम से, कभी रात जागरण के नाम से, कभी फाइट फॉर द नाइट के नाम से ये प्रोटेस्ट लगातार होते रहे हैं। और यही बता रहा है कि आक्रोश को समझने में अगर राज्य सरकार इमीडिएटली कुछ कदम उठा लेती तो शायद इस आक्रोश पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स ने, इन हड़ताली डॉक्टरों ने जब सड़कों पर बैठकर स्वास्थ्य भवन का घेराव किया, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद नबानो अभियान बीजेपी ने किया, जिसको राजनीतिक रंग दिया गया, और फिर लेफ्ट की ओर से या लेफ्ट समर्थित संगठनों की ओर से लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। तो जहां एक ओर जनता सड़कों पर उतरी, वहीं दूसरी ओर इसमें राजनीति के रंग मिलते हुए दिखे। पर एक बात तो साफ है कि डॉक्टर जो सड़कों पर बैठे थे वो अपनी मांगों पर टिके हुए थे, और सरकार का दावा है कि करीब 90% से ज्यादा उनकी मांगों को मान लिया गया है। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ घंटों में डॉक्टर्स की तरफ से क्या इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो अपनी इस पूरी कवायद को, इस पूरी हड़ताल को सफलता का नाम देते हुए क्या इसे बंद करेंगे, इसे आज ही खत्म करेंगे, या फिर अभी भी अपनी किसी और मांग को लेकर अड़े रहेंगे। ये आरोप भी लगा है डॉक्टर्स पर कि वो बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे। पहले उन्हें कमिश्नर का इस्तीफा चाहिए था, फिर उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का चाहिए था, फिर उन्हें अपनी बाकी मांगे थी। ये मांगे लगातार बदल रही थी, इसलिए सरकार के लिए भी एक चुनौती थी। वहीं दूसरी ओर कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, यानी कि आज 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है, क्योंकि एक और जहां पर बैटरी ऑफ
एक के बाद एक एडवोकेट 21 एडवोकेट राज्य सरकार की ओर से लड़ रहे हैं, तो वहीं लगातार डॉक्टर्स के पक्ष में भी वकीलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सीबीआई भी है एक तरफ। तो आज ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तक डॉक्टर संदीप घोष को पहले सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे में उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें खुद कोलकाता पुलिस के ओसी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ भी आक्रोश है दोनों तरफ, कोलकाता पुलिस की तरफ भी तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और जनता की तरफ भी, कि आखिरकार पुलिस का या फिर थाना के ओसी को गिरफ्तार कर लेने में क्या भूमिका है और इसको किस तरह से सीबीआई पूरी तरह से पुष्टिकरण दे पाएगी अदालत में। अब अदालत के हाथ में गेम होगी, जहां पर ये फैसला करना होगा अदालत को कि जो डॉक्टर्स ने किया है, जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो दावा सरकार कर रही थी ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इस मामले को सलटाया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पिछले मंगलवार शाम 5 बजे तक सभी डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर आना है, जो कि संभव नहीं हुआ और ये तारीख पर तारीख चलती चली गई और राज्य सरकार और डॉक्टरों के बीच में ऐसी स्थिति आ गई जिसे लग रहा था कि इस गांठ का खुलना लगभग असंभव है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य भवन गई, वहां पर जाकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, उन्हें ये समझाया कि आप छोटे बच्चे हैं, आप हम समझ रहे हैं, हम भी आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन ये बात भी समझना कि राज्य सरकार की ओर से क्या इतने कदम उठाए गए जो संतुष्ट करने वाले हो जनता को। एक सरकारी अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर का एक कॉन्ट्रैक्चुअल सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार और हत्या का मामला एक छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी वारदात है जिससे कोलकाता और खास तौर से पश्चिम बंगाल में जिस तरह की सोसाइटी है उसमें ये बहुत बड़ा, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना गया है। और ये अपराध ऐसा है जिसे अक्षम्य तो है ही, लेकिन राज्य सरकार की पूरी भूमिका को इतने बड़े सवालिया निशान से लीपापोती के तहत सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार किसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी तो क्या सीबीआई इन परतों को खोल पाएगी। तो वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठने हैं कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसे तोड़ा गया, जिस मंशा से तोड़ा गया, अभी ये सारी चीजें पीछे हट गई हैं, पर अब आंदोलनकारी छात्रों को कम से कम वापस दफ्तर तक लाना और इस तरह पूरी राजनीति के प्रकरण को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती हो गया है। राज्य सरकार की 5 हफ्तों की विफलता ये सबके सामने है। इस सब विफलता पर किसी भी तरह के सवाल उठना लाजमी है। जब आपके राज्य के डॉक्टर सड़कों पर बैठे हों तो सरकार की ही जवाबदेही होगी, खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हो और वही स्वास्थ्य मंत्री हो। ऐसे में सारे पोर्टफोलियो जिन पर सवालिया निशान उठे हैं वो फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास हैं। और दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी ने ही लगातार इंटरवेंशन करके अब इस मामले को एक कम से कम ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया है जहां ये भरोसा किया जा सकता है कि डॉक्टर जल्द से जल्द अब अपनी हड़ताल को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, एक सॉफ्ट रवैया सरकार ने अपनी तरफ से दिखाया है और अब कहीं ना कहीं जो गेंद है वो डॉक्टर्स के पाले में भी डाल दी है, क्योंकि शुरुआती दौर से ममता बनर्जी को हम देख रहे हैं बात करने की, बैठक करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बीच में ये तक कह दिया था कि अगर आप लोग चाहे तो मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। अब स्थिति को देखकर मनोज्ञ लग क्या रहा है? क्या डॉक्टर्स मान जाएंगे या फिर जो हड़ताल है वो भी आगे जारी रहेगी? जो सरकार का रवैया था, जिस तरीके से आज उनकी मांगों को माना गया है, उससे वो सहमत नजर आएंगे? क्या लगता है अब आगे क्या होगा? देखिए, डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि हम अभी अपनी जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे जिसमें हमारे सारे पक्ष रखे जाएंगे। करीब 26 सरकारी अस्पताल हैं जिसमें हर अस्पताल से एक नुमाइंदा है जो अपनी बात रख रहा है। ऐसे में आधे घंटे से 1 घंटे तक का इंतजार करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आखिरकार डॉक्टर की इस बात पर सहमति बनती है या फिर नहीं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ चुके हैं जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये भी कहा गया है कि किस किस बात पर बात रखी गई। सबसे पहले तो डिमांड रखी गई कि WBUDF का जो ज्यूरिसडिक्शन है उस पर सवाल उठे। फिर 100 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं CCTV के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, उनके कंसल्टेशन के लिए। रोगी कल्याण समिति बनाई गई है जिसमें हर तरह से सभी पक्षों को रखकर एक सिविक सोसाइटी के तहत काम किया जा सके। CP कोलकाता पुलिस और DC नॉर्थ को हटाया गया है। उसके अलावा हेल्थ में खासतौर से DME और DHS इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया है अपनी वर्तमान स्थिति पे। लेकिन इस समय ये बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। 5 हफ्ते तक पूरे देश में देखा है कि
कि एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एक ऐसी घटना होती है जिसमें इतनी सारी परत दर परत खुलती चली जाती है, जिसमें एक संजय रॉय की वजह से अगर बलात्कार और हत्या की घटना हुई है, एक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भ्रष्टाचार के मामले की परतें खुलती चली गई और फिर जब ये कह देना कि एक जिन्हें बचाया जाए, डॉक्टर संदीप घोष को रीइंस्टेट कर देना, पहले उनको हटाना और उसके बाद फिर उनको एक बेहतर पोजीशन पे रीइंस्टेट कर देना, ये वो बातें हैं जो सवालिया निशान खड़े कर रही थी और लाजमी भी है, जहां पर ये आरोप तक लग गए बच्चों के द्वारा, यानी पीड़िता के परिवार के द्वारा भी ये कहते हुए कि प्रशासन की ओर से उन्हें पैसे ऑफर किए गए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसकी बेटी के साथ इस तरह के अपराध और इतनी वारदात हुई हो, अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। छात्रों का कहना है कि यदि यह घटना एक लड़की के साथ हो सकती है तो हो सकता है अगला विक्टिम कौन होगा, और यही इनसिक्योरिटी है जिसके सवालों के घेरे में आने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया और उनको ये कहा कि अब आप इसकी सुरक्षा देखेंगे आरजीकर अस्पताल की। हालांकि सीटाकशी उस पर भी हुई, आरोप ये भी लगे कि राज्य की ओर से, प्रशासन की ओर से सीआईएसएफ को वो सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई जो उन्हें कराई जानी थी, जिस पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें जो भी मांगा वो उन्हें दे दिया गया था। अब दूसरा पहलू ये हो जाता है कि इसमें राजनीति की बात उठ जाती है कि क्या लेफ्ट इसके पीछे आंदोलन कर रहा है, बीजेपी मंच बनाकर कर रही है, जिस मंच बनाने के लिए भी उसे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ गया, तो अब राजनीति करने के लिए भी कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ रहा है। प्रदर्शन करने पर भी जगह जगह पर रोक लग रही है। उसका एक कारण ये था कि इस समय शहर में दुर्गा पूजा का फेस्टिवल शुरू हो जाएगा और उसके पहले सड़कें जाम और उसके साथ साथ लगातार हो रहे प्रोटेस्ट अगर बिना पुलिस की जानकारी के हो रहे थे तो वो बड़ी समस्या बन रहे थे। पर अब सबसे बड़ी समस्या ये और सबसे बड़ा समाधान यही होगा कि डॉक्टर वापस ड्यूटी पर आए और उसका फैसला वो कब और कितने मिनटों बाद सुनाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। जी, फैसला तो कब करेंगे वो इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। मनोज्ञा, एक बार फिर से अपडेट दे दीजिए कि क्या अभी तक किसी भी डॉक्टर की जो इस मीटिंग में शामिल था उनकी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मीटिंग के बाद? अभी कुछ ही मिनटों में डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे के पूरे 42 डॉक्टर्स के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपील कर रहे हैं राज्य सरकार ने, ये यानी मुख्यमंत्री, ये मिनट्स में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपील की कि जितना जल्दी हो सके सारे डॉक्टर वापस आए ड्यूटी पर, क्योंकि राज्य में चरमरा रही है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था। और ये बात सच है कि जूनियर डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है उन अस्पतालों में जो बहुत बड़े अस्पताल होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा मरीज आते हैं, खासतौर से कोलकाता में आरजीकर हो या फिर एसएसकेएम हो या फिर मालदा मेडिकल कॉलेज हो या बाकी सारे उत्तर बंगाल के कॉलेजेस हों। अभी बारिश का मौसम है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों का इलाज जरूरी है, कई एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसी 2-3 घटनाएं हुई हैं जिनको खुद राज्य सरकार ने कहा कि इसके लिए अगर जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी पर होते तो कम से कम इन लोगों की मौत नहीं होती। अब ये ऐसे सवाल हैं जिनको खुद जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम अपने प्राणों की सुरक्षा भी मांग रहे हैं और यही वजह है कि हम बार बार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल फ्रेटर्निटी को अब पूरी तरह से ये भरोसा दिलाया गया है राज्य सरकार की ओर से कि उनकी जितनी भी मांगे हैं, खासतौर से सरकारी अस्पतालों में, उनको मुहैया कराने की जिम्मेदारी अब सरकार की होगी। कोलकाता पुलिस ने विनीत गोयल को जब एक मेमोरेंडम सौंपा गया था पिछले 10 दिन पहले, जिसमें यही छात्र गए थे जिन्हें ओवरनाइट सड़क पर बीबी गांगुली स्ट्रीट पर घंटों बैठना पड़ा था, करीब 24 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत उन्हें लाल बाजार तक जाने की अनुमति, एक साथ जाने की अनुमति नहीं थी और प्रदर्शन करने की, जिसके बाद वो खुद जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल से मिले और उन्होंने विनीत गोयल के इस्तीफे का ही कागज मेमोरेंडम उन्हीं के हाथ में सौंपा, ये कहते हुए कि हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। और तब विनीत गोयल ने उनसे कहा कि देखिए मेरा भी परिवार है, लेकिन हम इस्तीफा नहीं दे सकते क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, इसलिए हमें ट्रांसफर किया जाता है और ये काम प्रशासन या राज्य सरकार या गृह विभाग भी कर सकता है। अब ये घटना हो गई, उसके बाद भी जब इस तरह के कदम नहीं उठाए गए, तब प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि शायद उनकी मांगे सही जगह पहुंच नहीं रही हैं, जिसके कारण उन्होंने जिस समय स्वास्थ्य भवन आंदोलन किया उसके बाद वहीं बैठ गए और वहां पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार बैठे ही रहे।
इसके बाद इतनी सारी कोशिशें की गई और जब उन्होंने उठने से मना कर दिया तो उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई, उन्होंने वहां पर बात की। पर सवाल यही उठता है ना कि क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद 14 अगस्त की रात को जब 7,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं आरजीकर अस्पताल के सामने और वो पुलिस एक मूढ़ दर्शक बनकर खड़ी रहती है, एक मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है, ये समझते हुए कि जब लोग अंदर घुस जाते हैं तो डॉक्टर्स के मन में जो डर है, जो भय पैदा हुआ, उसे खत्म करने के लिए इतना समय लग गया। सिर्फ एक घटना में जितना झकझोरा है उससे ज्यादा 14 अगस्त की रात को जब हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें ऐसे कई लोग थे जो अस्पताल के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की, जिसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया। जी मनोज्ञा, क्योंकि संदीप घोष का जिक्र आपने किया, जब वो सवालों के घेरे में आए, जब उस पूरे मामले में वो आरोपी बने, तब उन्हें जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से सिर्फ हटा दिया गया था। यही चीज विनीत गोयल के साथ भी की गई है। जब वो सवालों के घेरे में आए, जब सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि विपक्ष की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कि करीबी हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ लीपापोती करने के लिए उन्हें हटाया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी पसंद की जगह पर भेज दिया जाएगा? तो सिर्फ एक लीपापोती करने के लिए या दिखाने के लिए कि हमने एक्शन लिया है, सिर्फ ये कदम उठाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। डॉक्टर संदीप घोष उसी अस्पताल के प्रिंसिपल हैं जिस अस्पताल में ये घटना हुई है। उन्हें वहां से एक्शन लेकर हटाने की जगह राज्य सरकार ने उन्हें एक क्रीमियर पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया, जिस पर सवाल। जी, तो देखिए जिस तरीके से पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ, मनोज्ञा जानकारी दे रही थी, उसके बारे में इंतजार है डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या वो अब इसके बाद फैसला लेते हैं।